I hope you are doing well. Last week, we started the chapter about a king. In this chapter, we learned how a good ruler and a good person should be. Today, we will go through the textbook activities. We will do the question answers and other exercises today. Dear students, now we will discuss oral exercise. Answer the following questions orally. You should write the question answers in your notebook. First question. Maharaja Ranjit Singh कौन थे? Maharaja Ranjit Singh कौन थे? Who was Maharaja Ranjit Singh? What is the answer? Maharaja Ranjit Singh पंजाब के राजा थे. महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे. Maharaja Ranjit Singh was the king of the Punjab. Second question. वे रात्रि के समय किस प्रकार घूमते थे? वे रात्रि के समय किस प्रकार घूमते थे? How did he roam at night? How? वे रात्रि के समय अपने चुने हुए सरदारों के साथ वेश बदलकर घूमते थे. Once again, वे रात्रि के समय अपने चुने हुए सरदारों के साथ वेश बदलकर घूमते थे. What does it mean? It means at night he used to travel around his country with his soldiers in disguise. At night he used to travel around his country with his soldiers in disguise. Third one. महाराजा के सिर पर क्या गिरा? महाराजा के सिर पर क्या गिरा? What fell on the king's head? What fell on the king's head? महाराजा के सिर पर एक नुकीला पत्थर गिरा. महाराजा के सिर पर एक नुकीला पत्थर गिरा. नुकीला पत्थर, what does it mean? It means sharp stone. A sharp stone fell on his head. And fourth one. महाराजा ने बुढ़िया को क्षमा करके उसे क्या दिया? महाराजा ने बुढ़िया को क्षमा करके उसे क्या दिया? It means, what did the king give to the old lady after forgiving her? What did the king give to the old lady after forgiving her? महाराजा ने बुढ़िया को 10,000 रुपये दिया. महाराजा ने बुढ़िया को 10,000 रुपये दिया. Raja gave the old woman 1,000 rupees from the treasury. Okay. Once again, महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे. सेकंड वन. वे रात्रि के समय किस प्रकार घूमते थे?
वे रात्रि के समय अपने चुने हुए सरदारों के साथ वेश बदलकर घूमते थे. नेक्स्ट, महाराजा के सिर पर क्या गिरा? महाराजा के सिर पर एक नुकीला पत्थर गिरा. फोर्थ वन, महाराजा ने बुढ़िया को क्षमा करके उसे क्या दिया? महाराजा ने बुढ़िया को क्षमा करके उसे 10,000 रुपये दिया. Then, writing exercise. Choose the correct answer. महाराजा का स्वभाव कैसा था? What was the nature of the Maharaja? दयालु था और क्रूर था और गुस्सैल था. Which is the correct option? दयालु, kind, क्रूर, cruel, गुस्सैल, angry man. Which is the correct one? Maharaja Ranjit Singh? Yes. Say loudly. दयालु थे. दयालु. Okay. First option is correct. Next one. महाराजा अपना वेश बदलकर कब घूमा करते थे? When did the Maharaja change his dress and move around? दिन को, रात को और शाम को. Day time or night or evening. Which is the correct answer? महाराजा अपना वेश बदलकर रात को घूमा करते थे. Yes. At night he travel around his country in disguise. Okay. Then रात को. Second option is correct one. Next. बुढ़िया ने बैर के पेट पर क्या मारा? बुढ़िया ने बैर के पेट पर क्या मारा? लाठी, पत्थर और तीर. What did the old lady throw at the berry tree? Lathi. Lathi means a stick. Pathar, stone. Tir, arrows. Which is the correct one? बुढ़िया ने बैर के पेट पर क्या मारा? पत्थर मारा. Second one is correct. Then next. बुढ़िया को राजा ने कितने रुपए दिया? How much money did the king give to the old lady? How much money? 500? 300? 3,000? 3,000? or 10,000? 10,000? Which is the correct one? 10,000. बुढ़िया को राजा ने 10,000 रुपये दिए. Okay. Once again. महाराजा का स्वभाव कैसा था? दयालु, क्रूर और गुस्सैल. महाराजा दयालु था. नेक्स्ट वन. महाराजा अपने वेश बदलकर कब घूमा करते थे? महाराजा अपने वेश बदलकर दिन को, रात को और शाम को, रात को घूमा करते थे. बुढ़िया ने बैर के पेट पर क्या मारा? बुढ़िया ने बैर के पेट पर पत्थर मारा. पत्थर मारा. बुढ़िया को राजा ने कितने रुपये दिया?
10,000 रुपये दिया. Dear students, take your textbook and complete this activity in your textbook. Okay. Study well. Then next one, सही वाक्यों पर टिक और गलत पर क्रॉस चिन्ह लगाइए. ट्रू और फॉल्स और सही या गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट, महाराजा रणजीत सिंह चेन्नई के राजा थे. स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? सही या गलत? से लाउडली. या महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे. That's why statement is wrong. गलत. Put cross mark here. वे बहुत कंजूस और कायर थे. What does it mean? He was miser and fool or idiot. He was miser and an idiot. No. वे बहुत दयालु थे. Second statement also wrong. Then third one, राजा के सिर पर पेड़ की शाखा गिरी. Dear children, राजा के सिर पर क्या गिरी? You know? Yes, राजा के सिर पर पत्थर गिरी. इसलिए एक वाक्य गलत है. राजा के सिर पर पेड़ की शाखा गिरी. A branch of the tree fell on the king's head. No. एक वाक्य गलत है, wrong. Third one also wrong. Then fourth one, बुढ़िया ने राजा से क्षमा याचना की. बुढ़िया ने राजा से क्षमा याचना की. The old lady apologized to the king. Yes, that statement is correct. बुढ़िया ने राजा से क्षमा याचना की. यह वाक्य सही है, ट्रू. लास्ट वन, राजा ने बुढ़िया को क्षमा करके 10,000 रुपये भी दिए. राजा ने बुढ़िया को क्षमा करके 10,000 रुपये भी दिए. The king forgave the lady and also gave her 10,000 rupees. Yes, correct. Once again, true or false? Listen carefully. महाराजा रणजीत सिंह चेन्नई के राजा थे. एक वाक्य सही और गलत? गलत. वे बहुत कंजूस और कायर थे. स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत. राजा के सिर पर पेड़ की शाखा गिरी. राजा के सिर पर पेड़ की शाखा गिरी. ट्रू और फॉल्स? ओके, एक वाक्य गलत है. देन बुढ़िया ने राजा से क्षमा याचना की. यस, दैट इज करेक्ट. राजा ने बुढ़िया को क्षमा करके 10,000 रुपये भी दिए. यस, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो
करेक्ट, यह वाक्य सही है. Then our exercise number 3, we didn't follow this one, we didn't write. Now we will discuss our fourth activity. Make sentences with the following words. Only 3 words are here. First one, Dayalu. What does it mean? Dayalu. Dayalu means kind. Please make some sentence. You know? Dayalu means kind. Okay. Raja Ranjit Singh. Yeah, correct. Raja Ranjit Singh. Dayalu. They. Some more. Gandhiji. Dayalu the. APJ Abdul Kalam. एक दयालु आदमी थे. Okay. सोचना. सोचना means to think. सोचना means to think. कोई भी काम करने से पहले खूब सोचना चाहिए. या कोई भी काम करने से पहले खूब सोचना चाहिए. Think before you act. If you do anything, before that you should think. After that you may do anything. कोई भी काम करने से पहले खूब सोचना चाहिए. Yeah. Then next one, himmat. It means courage. सिपाही हिम्मत के साथ लड़ते थे. सिपाही हिम्मत के साथ लड़ते थे. It means soldiers fight with courage. सिपाही, soldiers. सिपाही हिम्मत के साथ लड़ते थे. Then match the following. सही मिलान कीजिए. One side महाराजा रणजीत सिंह. राजा के माथे पर बूढ़िया बेजान पेट पत्थर की चोट खाकर भी मीठे फल देता है. 3 दिनों से भूखी थी. नुकीला पत्थर लगा पंजाब के राजा दे. Very easy session. You look, महाराजा रणजीत सिंह. कौन दे? या पंजाब के राजा दे. महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे. सेकंड वन, राजा के माथे पर नुकीला पत्थर लगा. A stone fell on his head. Yeah. बुढ़िया. बुढ़िया 3 दिन से भूखी थी. She has not received food for last 3 days. She have hungry, no? Yes. बुढ़िया 3 दिन से भूखी थी. And last one. बेजान पेट पत्थर की चोट खाकर भी मीठे फल देता है. Yeah. This lifeless tree can give fruits. This lifeless tree can give मीठे फल, sweet fruits. First one, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा दे. राजा के माथे पर नुकीला पत्थर लगा. बुढ़िया 3 दिन से भूखी थी.
बेजान पेट पत्थर की चोट खाकर भी मीठे फल देता है. Okay. Yes, students. Now let us watch a story video. कुछ वक्त पहले की बात है. एक गांव में बंसी नाम का दूध वाला रहता था. बंसी के पास गाय और भैंस थी, जिसका दूध निकाल कर वो बेचता था और उसी आमदनी से अपना घर बार चलाता था. गांव में बंसी का बहुत नाम था, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना दूध बेचता था. वो अपने दूध में बाकी दूध वालों की तरह मिलावट नहीं करता था. बंसी काफी उदार दिल का था और अपनी गाय और भैंस का बड़ा ख्याल रखता था. बंसी अकेला था, तो उसे ज्यादा आमदनी नहीं चाहिए होती थी अपने जीवन निर्वाह के लिए. तो बंसी हर रोज अपनी कुछ आमदनी बचा के अपनी पुरानी पुश्तैनी पेटी में रखता था, ताकि जरूरत के समय वो आमदनी उसके काम आ सके. ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा. बंसी ने अपने भविष्य के लिए अच्छी आमदनी जमा कर ली थी. अरे वाह, मालिक की मेहरबानी से मेरे पास तो बहुत अच्छी आमदनी बची हुई है. थोड़ी आमदनी मैं और जोड़कर अपने लिए एक घर ले लूंगा अच्छा सा, और मेरी इन गाय और भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला भी बनवा लूंगा. चलो, अब रात हो गई है, चलकर सोना चाहिए. अपनी कमाई हुई आमदनी पेटी में पुरानी आमदनी के साथ रखकर बंसी सोने चला गया. और उस रात एक चोर उसके घर आया और उसकी पेटी में से बचाई हुई आमदनी लेकर चला गया. जब सुबह बंसी उठा तो उसने देखा कि उसकी पेटी खुली पड़ी है. जब नजदीक जाकर उसने देखा तो उसे पता चला कि उसकी आमदनी कोई चुरा कर भाग गया है. बंसी के तो होश ही उड़ गए थे और वो रोने लगा. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए. उसने सालों की मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी, वो कोई एक रात में चुरा कर ले गया. वो घर उदास बैठा ही था कि उसके वहां उसका मित्र रामू आया, जो बंसी से दूध खरीदता था. अरे, आज तो सुबह आया नहीं? हाँ, मैं तेरी राह देख रहा था. आया क्यों नहीं आज? तबीयत तो ठीक है तेरी? रामू, आज मेरे पास दूध नहीं है. आज तुम कहीं और से दूध की व्यवस्था कर लो. अरे अरे अरे, क्या हुआ? बताओ, इतने उदास क्यों हो? क्या बात हुई? मैंने इतने साल कड़ी मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी, वो कोई एक रात में चुरा कर भाग गया. क्या मतलब हुआ मेरी इतने साल की मेहनत करने का? अरे भैया चुप हो जाओ. इस वजह से क्या तुम दूध बेचना बंद कर दोगे? हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई. तुम ऐसा करो, राजा अकबर से मिलो जाकर. वो चोर को जरूर ढूंढ देंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे. एक दूध वाले की मदद करने के लिए राजा अपना कीमती समय क्यों देंगे? बंसी, उन्होंने एक न्यायालय का निर्माण किया हुआ है, जहाँ छोटे मोटे विवादों का समाधान किया जाता है. मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ न्याय जरूर मिलेगा. हाँ, सच कह रहे हो? हाँ. ठीक है, मैं जाता हूँ. बंसी के मुख में हल्की सी मुस्कान आ गई. उसी दिन जाकर बंसी राजा अकबर से मिला. अपना परिचय दीजिए. मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक छोटा सा दूध वाला हूँ. ऐसा क्या हो गया है कि एक दूध वाले को हमारे न्यायालय की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी? सरकार, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपसे मिलने आया हूँ. वो सब तो ठीक है. आप हमें अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उसका निवारण कर सकें. जहाँपना, मैं कई सालों से दूध का व्यापार करता आ रहा हूँ. मेरे पास एक गाय है और एक भैंस है. उनके दूध को बेचकर मैं अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था. पर तभी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी हिम्मत टूट गई. मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा कर रखी थी. ये बात हमें आपकी अच्छी लगी कि हर एक इंसान को अपने जीवन में निर्वाह के साथ अपने भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए. आगे बढ़िए. जनाब, मैं अपनी पुश्तैनी पेटी में आमदनी जमा करता था. कुछ समय में मुझे अपने लिए एक अच्छा घर और अपनी गाय भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला लेनी थी. पर कल रात कोई आदमी चोरी करके वो सब कुछ ले गया. आपको कब पता चला कि आपकी आमदनी चोरी हो गई है? हुजूर, मैं सुबह जैसे ही गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए उठा, मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है. मैं घबरा गया और भागते हुए मैंने सबसे पहले अपनी पेटी को देखा. मैंने देखा कि पेटी का ताला टूटा हुआ है और अंदर मेरी सारी जमा की हुई पूंजी गायब है.
ये तो भाई परेशानी वाली बात है। क्या तुमने कभी किसी से अपनी जमा पूंजी का जिक्र किया था? नहीं जनाब, मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। किसी को मेरी पेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बीरबल जी। हम चाहते हैं कि आप इस समस्या का हल निकालें, हमारे राज्य के दूध वालों की मदद करें। जैसी आज्ञा जहांपना। हाँ तो भाई, क्या नाम बताया आपने अपना? जी जनाब, मेरा नाम बंसी है। तो भाई बंसी, तो आपको किस पे शक है? किसी पे नहीं है। बंसी जी, आप अपने चौकीदार और आसपास के रहने वाले सब लोगों को दरबार में कल हाजिर कीजिए, ठीक है? जैसा आप कहें जनाब। दूसरे दिन बंसी ने अपने आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया और चौकीदार और उसके घर में काम करने वाले कुछ और लोगों को भी उसने दरबार में पेश किया। बीरबल। जी हुजूर। तो अब क्या कहना है आपको? क्या आपने चोर को पकड़ लिया है? क्या आपको पता है इनमें से कौन चोर है? नहीं जहांपना, पर मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास कुछ जादुई लकड़ियां हैं। मैं ये लकड़ियां इन सबको दूंगा। जादुई लकड़ियां? ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये बताओ बीरबल, ये लकड़ियां तुम्हारी मदद कैसे करेंगी चोर को ढूंढने में? जहांपना, कल सुबह हम इन सबको लकड़ियों के साथ बुलाएंगे। जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी, और जिसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी है बस वही चोर है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी ये जादू देखना चाहता हूं। कल सुबह आप सब लोग यहाँ पर इस लकड़ी के साथ हाजिर होंगे। जी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। जी हुजूर। दूसरे दिन न्यायालय में सब अपने समय से हाजिर हो गए थे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। सबने अपनी लकड़ियां दे दी और विचार कर रहे बीरबल से अकबर ने कहा, हाँ तो बीरबल, कौन है गुनहगार? क्या पता चला आपको इन जादुई लकड़ियों से? जहांपना, मैंने चोर को ढूंढ लिया है। ये चौकीदार ही चोर है। नहीं जहांपना, मैंने कुछ भी नहीं किया। बीरबल, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? जहांपना, ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं है। ये पेड़ से एक ही माप में काटी हुई साधारण सी लकड़ियां हैं। जब मैंने कल बोला कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप 1 इंच बड़ी हो जाएगी, तो ये चौकीदार ने डर कर इस लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि जब ये 1 इंच बड़ी हो जाए तो बाकी लकड़ियों के समान ही रह जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई वाह 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 भाई वाह वाह। ऐसे मुद्दे हल करने में तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हुजूर, इस चोर को पकड़ लिया जाए और इसे कारावास में डाल दिया जाए। और तुम अब बंसी का सारा चुराया हुआ धन वापस कर दो। महाराज की जय हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक और इंसाफ किया। Dear students, I hope you understood the lesson well. We completed question answers, match the following, making sentences, among other exercises. As today's homework, write question answers and sentence making in your copybook 2 times. Please complete the remaining textbook activities in the textbook itself. You have to write true or false and match the following in your copybook. And should submit the homework by 4 p.m. tomorrow. There will be a class test tomorrow. Study well and attend the test. With that, let us wind up this session. See you all in the next class. Thank you.